Good evening, everyone. Good evening, Arvaz. Good evening, Sakshi. How are you doing? All well? Yes, sir. Okay, great. So, I hope you have done your homework because I asked you to do some little homework. Were you able to do it? Yes, sir. Okay. I shared. Yeah, I think you did share in the group as well, Arvaz. All right. So, I'll just let everyone in quickly and then we'll get going. Good evening, Arna. How are you doing? Good evening, sir. Doing well. Okay, wonderful. I'll just let everyone in quickly and then we'll get going. So I can see Sarita as well. Sarita has just joined. I'll just let everyone in quickly. So, was there any work yesterday? Absolutely, Arna, there was some homework. Did you get time to see the videos? Rubina, good evening. How are you doing? So, fine, sir. So, thank you for asking, sir. How are you, sir? I'm perfectly fine. Thank you so much, Rubina. I can see Deepti. Deepti, good evening. I can see Pranjal. Good evening, Pranjal. Good evening. Good evening, Manshi. How are you doing? Are you all fine? You all keeping well? Good evening, sir. Good evening, Manshi. All right, so we'll quickly start. There was some homework that I had asked you people to do. Did you people do your homework? अब याद कीजिए past tense है. Did you all do your homework? Did लगाया तो do लगाया. Did you people do your homework? What does that question mean? Anyone? Yeah, anyone? Unmute Arna. What does that question mean? Did you people do your homework? Yeah, actually, we need explain it in Hindi. Sorry, I didn't get you. What are you trying to say? Like, do we need to say it in Hindi? Like, translate the word like something. Of course, you have to tell this in Hindi so that everyone understands what does the translation look like. So, what does that mean if I were to say, "Did you people do your homework?" What does that mean? क्या आपने अपना होमवर्क किया? Exactly. क्या आप लोगों ने अपना homework किया? Right? So, if I were to say, क्या आप लोगों ने अपना homework किया है? तो I would have said, have you done your homework? Have you done your homework? You remember everyone the difference between these two constructions? Yes, sir. I have done homework. I Yes, sir. have done my homework. I have done my work. Great. Okay, so we'll get going. So the homework was, for those who have no idea about the homework, the homework was very simply you had to make sentences with the present tense. So I had asked everyone to write certain sentences on simple present, 10 sentences on simple present with the positive and negative formations. Then I asked everyone to write 10 sentences on present continuous, positive and negative, and 10 sentences on present perfect, positive and negative. Isn't it, Arvaz? Yes? Isn't it, Deepti? Was it the homework? Yes, 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 be quick. Yes or no? Was it the homework? Yes, sir. Yes, that was the homework. Chali. So, how many of you have done the homework? Let's be clear on that. How many of you have done the homework? Raise your hands. Those who have done the homework, raise your hands. Okay. So, I see Sakshi, Deepti. No, Sakshi has put her hand down. Is it so? Sakshi has done the homework. So has Deepti. What about Arvaz? You have done your homework? Arvaz, have you done your homework? Am I audible to you all? Sir. I mean, Yes, sir. kindly respond when I ask you something. See, otherwise it has no sense. So please respond when I ask you something. So, all right. So we'll start quickly with Deepti. Deepti, carry on. हमें आप फटाफट अपने sentences सुनाइए जो जो आपने बनाया है. Yes, sir. Yeah. सर मैंने स्टार्टिंग में बनाया सिंपल प्रेजेंट ठीक है, सुनाइए. सिंपल प्रेजेंट में मैंने जैसे जो Yeah. मैंने बनाया जैसे इसमें जो सिंपल सिंपल प्रेजेंट कह रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट पे चलते हैं फटाफट से ताकि आपको
दिख भी जाए, कोई डाउट हो तो आपको दिख जाएगा ये, बताइए। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो गई, जैसे हैबिट और जो आप तो सेंटेंस बताइए, टेंशन मत लीजिए, आप तो सर, सेंटेंस बताइए फटाफट से, क्या क्या जैसे बनाया, आई ईट, राइट, आई ईट, या दे डांस, दे डांस, राइट, दे डांस इन अ ग्रुप, दे डांस इन अ ग्रुप, आई आई स्टैंड बिफोर यू आई स्टैंड बिफोर यू, टुडे, राइट, आई स्टैंड बिफोर यू टुडे, मैं आज आप सभी के समक्ष खड़ा हूं या खड़ी हूं, ठीक है। dog barks at the strangers, डॉग, राइट, द डॉग्स बार्क, खूब सारे डॉग्स हैं या एक ही डॉग है, dog barks ओके, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, at the strangers. वेरी गुड, We study English every day. वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे, वेरी गुड, व्हाट एल्स, She always arrives on time. शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वेरी गुड, व्हाट एल्स, They celebrate with their family. दे सेलिब्रेट, Christmas. या They celebrate Christmas with their family. they celebrate Christmas with their family, perfect, My brother plays guitar. my brother plays guitar, very good, You watch sports. you watch sports, perfect, My father works. my father works, मेरे पिताजी काम करते हैं, perfect, ओके, अब आप एक काम कीजिए, इनका नेगेटिव बनाया आपने दीप्ति, No sir, वो मैं ऐसे बता सकती हूँ. बताइए, हाँ तो फटाफट से पॉजिटिव बोलिए, फटाफट से नेगेटिव बोलिए, देखते हैं, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, सभी सुनेंगे एवरीवन, सभी सुनिएगा कि दीप्ति जी सही बता रही हैं, कुछ गड़बड़ है, एवरीवन, जैसे my brother plays guitar. हाँ, My brother don't plays guitar. ओ, Do not plays guitar. डू नॉट, तो सुनिए, रिलैक्स होके, ना तो डू नॉट आएगा और ना प्लेज आएगा, माय ब्रदर जो वो किस कैटेगरी में है, वो ही शी की कैटेगरी में है, तो डू नॉट की जगह क्या आएगा, डज नॉट, डजंट, डज नॉट, और जब डज नॉट आ गया है दीप्ति, तो आपको क्या करना है, आपको प्लेज नहीं लेना, आपको क्या लेना है, सिर्फ प्ले, Play. एग्जैक्टली, तो क्या हो गया आपका सेंटेंस, बताइए, My brother does not play guitar. एग्जैक्टली, माय ब्रदर डजंट प्ले गिटार, माय ब्रदर डज नॉट प्ले गिटार, क्या मतलब है इसका, फटाफट बताइए, मेरा भाई गिटार नहीं बजाता है. मेरा भाई गिटार नहीं बजाता, बिल्कुल ठीक है, राइट, और बताइए, Yes. क्विकली बढ़ते रहिए आगे, फटाफट फटाफट, फिर बाकी सबसे पूछता हूँ आज मैं, सर आप अभी एक बार किसी और को ले लेंगे. नहीं आप ही से पूछेंगे हम तो, फटाफट से स्पीड, यही तो कला है कि आपको हाथों हाथ प्रोसेस करना है, नेक्स्ट बताइए दीप्ति, सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए ओपन है, जो दीप्ति बता रही है सेंटेंस पॉजिटिव का सभी नेगेटिव बनाएंगे, इवन दीप्ति विल मेक, चलिए दीप्ति बताइए, सेकंड क्या था पॉजिटिव, बोलिए, था they are don't dance in a group. नहीं नहीं नहीं, सुनिए, दे आर डोंट डांस इन ग्रुप, बिल्कुल भी बैठा नहीं है ना वाक्य, पहले इसको रिलैक्स होके आप इसका सिंपल प्रेजेंट में बोलिए, क्या बोला, They dance in a group. दे डांस इन अ ग्रुप, ठीक है, हाँ, अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैसे बनता था दीप्ति, आपको याद है, हाँ, They don't dance एग्जैक्टली, दे डोंट डांस इन अ ग्रुप, बस आर लगाना ही नहीं आपको, दे डोंट डांस इन अ ग्रुप, दैट्स हाउ यू हैव, या, Arna, you want to say something, I see your hand raised, yeah, so please take care of that, thank you, okay, yeah, let's carry on, next one, हाँ दीप्ति बताइए, Next था I stand before you today. I stand before you today, हाँ आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, I don't stand before you today. very good, I don't stand before you today, absolutely, next, The dog barks at the strangers. हाँ, The dog don't barks at the strangers. okay, अभी आप Not नहीं आएगा don't. डोंट, ठीक है, रिलैक्स होके, द डॉग, और अब आप बताइए किस कैटेगरी में, Sir does हाँ, और डज नॉट, not तो पूरी बात क्या हुई दीप्ति, द डॉग डज नॉट बार्क, barks at the strangers. एग्जैक्टली, द डॉग डज नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए, We study English every day. राइट, सो क्या हो जाएगा, We don't study English every day. एब्सोल्युटली, वी डोंट स्टडी इंग्लिश एवरीडे, हम हर दिन अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, मुझे तो ये लगता है, आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो घर पे,
शायद नहीं पढ़ते हो ये, सही में मन की बात बता दी आपने। और सभी अब कैमरे के पीछे हंस रहे होंगे या छुप रहे होंगे, बट कैमरे सबके बंद है, इसलिए मैं देख नहीं सकता। आई एम श्योर। इज इट ट्रू व्हाट दीप्ति इज सेइंग एवरीवन? रुबीना, साक्षी, अरबाज, मानसी, Arna, is Yes, it? sir. Oh, that's true. See, everyone is saying it's true, sir. दीप्ति ने हमारे दिल की बात कह दी। We don't study English every day, sir. ये आपको मैं सच्ची बात पहले बता। हाँ पहले मैंने सही बोली थी, अभी आपने डोंट करवाई है। हाँ, तो डोंट करवाए तो वो आप बताइए सही है या नहीं है। या वी, थैंक यू। चलिए। Every day. Sorry, Rubina, what are you saying? We? I said that even we don't like study every day, we don't study every day. Not only English, every subject. Okay. चलिए, so Aditi says just a sentence, इसमें कोई भाव नहीं है उनके, सिर्फ वाक्य है कि we don't study English every day। चलिए quickly आगे बढ़िए दीप्ति, फटाफट फटाफट आगे पूछेंगे फिर सबसे। She always arrives on time. Yeah, she always arrives on time। She does not always arrive on time. हाँ, अब देखिए ऑलवेज लगाने में क्या होता है, नेगेटिव बनने में नेवर लगता है। ऑलवेज का जो ऑपोजिट ऑपोजिट होता है वो होता है नेवर। सो शी नेवर अराइव्स। तो आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, या तो आप ऑलवेज को रखें दीप्ति, तो आप बोलते हैं शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। इसका ऑपोजिट हो जाएगा शी नेवर अराइव्स ऑन टाइम, क्योंकि ऑलवेज का ऑपोजिट नेवर होता है। समझ में आ गया आपको? तो आपको वहां पे फिर रेगुलर कंस्ट्रक्शन नहीं करना। आपको रेगुलर कंस्ट्रक्शन कब करना है? Never. शी अराइव्स ऑन टाइम, तब आपको बोलना है शी डज नॉट अराइव ऑन टाइम। क्लियर है आपको? Yes. ऑलवेज लगा दिया ना दीप्ति आपने, तो आपको नेवर लगाना पड़ेगा। ये फिक्स है, हमेशा का कभी नहीं। हमेशा का हिंदी में होता है ना कभी नहीं, वैसे ऑलवेज का नेवर। तो आप फिर ये नहीं कर पाएंगे दूसरी चीजें, तो आप या तो ये बोल दीजिए शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, शी नेवर अराइव्स ऑन टाइम, या फिर शी अराइव्स ऑन टाइम, शी डज नॉट अराइव ऑन टाइम। क्लियर है आपको दीप्ति? Yes, sir. चलिए फटाफट से नेक्स्ट। They celebrate Christmas with their family. राइट। नेगेटिव? They don't celebrate Christmas with their family. Absolutely, they don't celebrate Christmas with the family. Next. My brother plays guitar. My brother don't plays guitar. Oh, आराम से सोच के बोलिए। My brother, मेरा भाई तो किस कैटेगरी में? ही की Does not. does not, और does not के बाद does not Play guitar. does not play guitar। Very good। My brother doesn't play guitar, my brother does not play guitar। Very good। Next। You watch sports. Yeah, you watch sports? You don't watch sports. Absolutely, you don't watch sports, right? Next। My father works. Yeah, My father third person. हाँ बिल्कुल थर्ड पर्सन है। My father does not work. Up does not Work. works या work everyone? Sir, work. हाँ वर्क आएगा। Exactly, my father doesn't work, my father does not work। Very good। That's it। Yes, sir. चलिए वेरी गुड, वंडरफुल। देखिए मेहनत करी आपने, हो गया। थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूजन है पर वो दूर हो जाएगा। चलिए एनीवन नेक्स्ट। होमवर्क इज समथिंग जो आपको खुद को बताना है, सर हमने किया है, हम बोलना चाहेंगे। अरबाज बताइए, अनम्यूट कीजिए, फटाफट से चालू हो जाइए। या Excuse me, sir. या अर्ना। Sir, should I do the homework right now or should I do it later? Do it later. Right now just listen to what others are saying and try to see that if you are able to provide some solutions, you are able to understand certain things, right? So just do it afterwards, after the class maybe. Okay, so we'll carry on. Yeah, Arvaz, over to you. बोलिए अरबाज। या अरबाज, हाँ थोड़ा सा माइक्रोफोन के पास आइए प्लीज, आई कैन नॉट हियर यू क्लियरली। He does being one. थोड़ा सा और थोड़ा सा अरबाज क्लियरली बोलेंगे प्लीज, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू क्लियरली। नहीं आवाज तो मुझे आ रही है बस। हाँ अभी ठीक है बिल्कुल, अब ऐसी आवाज में बोलिए बोलिए। They go to gym. सॉरी? They go to gym. दे, अच्छा दे बोलना चाह रहे हैं आप, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए अपने प्रोनाउंसिएशन को अरबाज। दे गो टू जिम। मैं आपने मोबाइल पे भेजे ना वाले सेंटेंसेस व्हाट्सएप पे? हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां पे थोड़ा सा नजर रखूंगा। हाँ बताइए। दे गो टू जिम, इज इट? My mother cooks the vegetable. राइट।
ठीक है. I play cricket. I play cricket. Very good. He plays basketball in the morning. He plays basketball in the morning, right? I do go to park. I do go to park. Everyone, आप चाहें तो अरबाज ने सारे sentences WhatsApp में भेजे हैं. आप सब अपना WhatsApp का ग्रुप खोल के रखिए. There you all can see his sentences, right? So he is on, I think 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस पे हैं ये. I do go to park. चलिए उसके बाद वाला 8th वाला He writes a letter. वापस से बोलिए. He writes a letter. He writes a letter. He writes a letter. Right? इसको अ करके पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे. He writes a letter. You meet your friend. Right? You meet your friend. Very good. Next. I am looking for job. हाँ, अब इन्होंने क्या किया? अरबाज has traveled in present continuous. Everyone ध्यान दीजिएगा. Present continuous में पहुंच गए. साक्षी, रुबीना, हम लोग, मानसी, सरिता, हम present continuous में हैं. प्रांजल and even we have कृष्णमन्यु. ध्यान दीजिएगा. मोबाइल फोन के अंदर आप सब अपने sentences खोल के रखिए. So अभी अरबाज ने पढ़ा है present continuous वाला and he is reading. I am looking for a job. अ लगाना पड़ेगा. I am looking for a job. ठीक है? I am waiting the train. I am waiting for the train. हमेशा हम किसी चीज की प्रतीक्षा करते हैं ना, तो for लगता है अंग्रेजी के अंदर अरबाज. I am waiting for the train. Right? He is going to market. He is going to the market. थोड़ा सा आप आर्टिकल्स का ध्यान दीजिए. He is going to the market. To the market. To the market. You are doing well. You are doing well. तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. Next. He is teaching English. He is teaching English. ठीक है. Next. You are buying a new car. Very good. You are buying a new car. Exactly. Next. I am reading a new book. I am reading a new book. Perfect. Next. He is searching for German teacher. He is searching for a German teacher. He is searching. आप थोड़ा सा इसका फिर से उच्चारण कीजिए. अरबाज for. He is searching for German teacher. Exactly. He is searching for a German teacher. I am learning German language. Okay. I am learning German language. ठीक है. आगे. I am traveling now. I am traveling now. ठीक है. I am visiting my friend. I am visiting my friend. Exactly. He has found a new job. अब ये ट्रैवल कर गए हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में सभी लोग ध्यान दीजिएगा. इन्होंने बोला है he has found a new job. बिल्कुल ठीक है. आगे. He has transferred money. He has transferred money. ठीक है. I have booked a ticket for Mumbai to Goa. और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए आप अरबाज. I have booked a ticket for Mumbai to Goa. No, for Mumbai to Goa. क्या मतलब हुआ इसका? From Mumbai आप कहना चाह रहे हैं? मुंबई से गोवा के लिए from? हाँ सर. हाँ, from. ठीक है. वापस से पूरा पढ़ दीजिए अरबाज. I have booked a ticket from Mumbai to Goa. ठीक है. Next. I have bought a new car. अच्छे से बोलिए. I have bought. I have bought. I have bought a new car. ठीक है. My friend has met in metro. इसका क्या मतलब हुआ अरबाज? My friend has met in metro. मतलब सर इसमें वो ऑब्जेक्ट का नाम भूल गया मैं. हाँ मुझसे मिला. हाँ मुझसे मिला. My friend has met me in the metro. Yeah, my friend has met me in the metro. ठीक है. आगे. I have not understood anything. ओ, बहुत ही भारी वाक्य है ये. मेरे को आप कह मत देना, मुझे बहुत टेंशन हो जाएगी अगर आपने मुझे कभी कह दिया सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग. समझ में आता है सभी को वाला सेंटेंस? एवरीवन, आई हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग. क्या मतलब है इसका? मुझे कुछ समझ नहीं आया. हाँ, मुझे कुछ नहीं समझ आया है. आई हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट. You have gone to Delhi. या यू हैव गॉन टू दिल्ली. क्या मतलब है इस वाक्य का? यू हैव गॉन टू दिल्ली. आप दिल्ली गए हैं. तो अभी वो कहाँ पे हैं? वो मतलब अभी दिल्ली में ही है या दिल्ली जाके आ गए हैं? वो दिल्ली गए हैं.
मतलब अभी वर्तमान में वो दिल्ली में ही है, isn't it? मतलब दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा मतलब है इसका अरबाज। Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, एवरीवन, एवरीवन मींस एवरीवन। हम अंग्रेजी में बहुत ही गड़बड़ करते हैं। हम जब कहते हैं ना यू हैव गॉन टू दिल्ली, इसका मतलब है हम उसको बता रहे हैं कि तुम दिल्ली गए हुए हो, यानी वो व्यक्ति दिल्ली में ही है ऑलरेडी। समझ रहे हैं आप लोग इस सेंटेंस का मीनिंग? इसका मीनिंग ये है यू हैव गॉन टू दिल्ली, यानी अभी वो जो व्यक्ति से बात हो रही है, द पर्सन टू हुम वी आर टॉकिंग, ही इज ऑलरेडी इन दिल्ली, यू हैव गॉन टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट। I have finished my homework in morning. Right, I have finished my homework in morning, right? We have ordered a pizza yesterday. आपको लगता है इसके अंदर yesterday लगने से हम अरबाज we have ordered लगाएंगे? कल की बात याद है आपको? मैंने सिखाया था कि जब कल होता है तब हम सिंपल पास्ट काम में लेते हैं, we ordered, we have ordered नहीं। We have ordered a pizza. हाँ बस we have ordered a pizza, फिर yesterday छोड़ दीजिए। I have written you a letter. Yes, I have written you a letter. I have written you a letter. बिल्कुल ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आ गए सारे सेंटेंसेस? एवरीवन, साक्षी, मानसी, क्लियर है आप सभी को सेंटेंसेस? रुबिना, दीप्ति, यस, आरना, आदि, क्लियर है? चलिए अब फटाफट से इसका नेगेटिव बनाते हैं। मैं जिसका नाम लूंगा वो व्यक्ति नेगेटिव बनाएगा। सो वील थैंक अरबाज फॉर शेयरिंग दीस सेंटेंसेस विद अस एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव ऑफ दीस सेंटेंसेस। ओके, सो पहला वाला, आई ईट चपाती एवरी डे। साक्षी, आई ईट चपाती एवरी डे, मैं हर दिन चपाती खाता हूँ। नेगेटिव, मैं हर दिन चपाती नहीं खाता हूँ। I don't eat chapati every day. Very good, I don't eat chapati every day. Perfect. Next, Arvaz, he does drink wine every evening. अच्छा, I think आपने wine ये जो है ये जर्मन भाषा का शब्द लिख दिया। It will be W-I-N-E, right? W-I-N-E. So he does drink wine every evening. तो इसका नेगेटिव क्या होगा? अरबाज? He does not drink wine every morning. Absolutely, he does not drink wine every evening. Wine की spelling W-I-N-E. Next, अर्ना बताइए, they go to gym का नेगेटिव? They do not do the Exactly, they don't go to the gym. They do not go to the gym. Next, आप बताइए रुबिना, my mother cooks like the vegetable, थोड़ा सा अटपटा है यहाँ पे। My mother cooks vegetables. My mother cooks vegetables. Yeah, could you repeat, Rubina? My mother do not cook vegetables. Are you sure? Do not लगाओगे? My mother Exactly. My mother doesn't cook vegetables. My mother does not cook vegetables. Very good. Next, I play cricket. Krishnamanyu, I play cricket का बताइए। Negative. फटाफट कृष्णमन्यु, I play cricket का नेगेटिव क्या होगा? सर अपने I doesn't not play cricket. वापस बोलिए, I Doesn't not. I के बाद क्या बोल रहे हैं? मैं सुन नहीं पा रहा आपको अच्छे से। I, Sir I don't. हाँ अब तो सही बोला, तो सुनाई दे गया मेरे को। इसका मतलब है कि जब गड़बड़ आती है ना आवाज के साथ हमारे कंस्ट्रक्शन में, तो मेरे कानों तो पहुंचता ही नहीं है वो। तो आपने क्या सही किया आपकी बार कृष्णमन्यु? I don't play cricket. Very good. I don't play cricket. Perfect. Next, he plays basketball in the morning. ये हम पूछेंगे मानसी से। मानसी आप बताइए। He doesn't play basketball in the morning. Very good. She doesn't play basketball in the morning. Absolutely. Next, आप बताइएगा सरिता। I do go to park. I do go to park. Sir, I don't go to the park. Very good. I don't go to park. अन्यथा I do not go to park. Very good. Perfect. Next. I have a question here. Sorry. I do Yeah. go to park. I do go to park. I go to park. Absolutely. That's what we learned in the previous classes, Rubina, that you have got these two options. You can say I go to park and I do go to park. आपको याद है हमने आपको बताया था कि आप do लगा के उसको और हाँ. emphasize कर सकते हैं ना, emphasize Yes, करना। yes. बिल्कुल, मैं पार्क जाती हूँ, I do go to park. I go to park, right? तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। Next, I'll ask प्रांजल। प्रांजल आप बताइए, he writes a letter. He
Absolutely, he doesn't write a letter. He does not write a letter. Okay, next one. To whom should I ask? Yeah, Deepti, आप बताइए. The next one is you meet your friend. You doesn't meet your friend. अब आपने you के साथ doesn't क्यों लगाया दीप्ति? You के साथ तो don't No, आता sir. है No, ना. sir. Don't. Yes, sir. हाँ, तो अब आपको करना क्या सभी को? आपको ये याद He, करना. it के साथ बस he, she और it के साथ ही doesn't आता है, अन्यथा सबके साथ don't आता है. I do, I don't. You do, you don't. He does, he doesn't. She does, she doesn't. It does, it doesn't. Yeah. बोलिए. नेम के साथ भी doesn't है. Of course, because जो नेम होता है ना, सीता, गीता, मोहन, राम, वो सब यहाँ वाली कैटेगरी में हो जाते हैं ही, शी के अंदर, इस वजह से. तो आप ध्यान रखिएगा. तो इसको आपको क्या मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको कंठस्थ करना पड़ेगा. You'll have to memorize it so that it comes out smoothly and you don't have to worry about it. So आपको क्या कंफ्यूज हो जाते हैं because आपने ज्यादा इसको भी मेमोराइज नहीं किया है. तो इसको कैसे मेमोराइज करना है? I do, I do not या फिर I don't. इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे. All right, so I'll just quickly do it for you once. I do, I don't. You do, you don't. He does, he doesn't. She does, she doesn't. It does, it doesn't. We do, we don't. They do, they don't. Clear है? चलिए दीप्ति एक बार आपके साथ ट्राई करते हैं. आपको नेगेटिव बोलना, मैं पॉजिटिव बोलूंगा. दीप्ति, I do. I don't. I don't. You do. You don't. You don't. He does. He doesn't. He doesn't. अन्यथा he does not. दोनों ही ठीक है. She does. Does not. She does not. She doesn't. It does. It does not. It does not. It doesn't. We do. बिल्कुल we do. We do. We We do. We don't. we don't. Do लगते ही don't या do not बोल दीजिए बहुत आसानी से. They do. They don't. They don't. बस. They don't eat. I don't eat. You don't eat. We don't eat. पर he doesn't eat. She doesn't eat. और it doesn't eat. जो भी वो एनिमल के लिए it बोला तो it doesn't eat. क्लियर है सभी को? इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, मेमोराइज करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट जो इनकी कैटेगरी ली है अरबाज ने वो है ING वाली. चलिए अरबाज आपसे चालू करते हैं. आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. इसका नेगेटिव क्या होगा? I am not looking for you. आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब. एब्सोल्युटली. नेक्स्ट सरिता आप ट्राई कीजिए. आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन. सरिता, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन. नेगेटिव. बोलिए 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 जल्दी से. सरिता सुनाई दे रही है आपको आवाज मेरी? Yes, sir. बोलिए. आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन का नेगेटिव क्या होगा? I am not waiting the train. I am not waiting for the train, right? I am not waiting for the train. For लगाना मत भूलिएगा सब लोग, उसमें थोड़ी सी चेंज होगा. So I am not waiting for the train. Okay, next one. Arna, आप बताइए. Next one is he is going to the market. He is going to the market. He is not going to the market. Exactly, he is not going to the market. और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अर्ना. He is not को contract करके कैसे बोलेंगे? Does not. Does not नहीं. He isn't going to the He market. isn't. He isn't, right? He isn't. I think मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था. याद कीजिए. He isn't. याद आ रहा है आप सभी को? दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे हमने is not को सीखा था. Isn't भी बोलते हैं. तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Aren't करके टच करना है. Aren't, right? अगर आपको थोड़ी इसमें तकलीफ है तो बहुत आसानी से आप क्या बोल सकते हो? You are not. इस प्रकार से बोलिए. Sir, am not is the pronunciation. हाँ, Am. I am का नेगेटिव हो जाएगा I am not, right? या फिर कई लोग बोलते हैं I ain't. I ain't. Ain't. Sir, again. I ain't. Okay. Ain't, right? I ain't. Okay, I ain't बोलते हैं पर बहुत रेयरली हम यूज करते हैं. I am not is the standard one.
और कुछ नहीं बनेगा, राइट? ये काटा हुआ है, ये बनता नहीं है इस वजह से। चलिए, तो अर्णा ने सही बताया, उसका नेगेटिव हो जाएगा। जब हमें कहना था he is going to the market, he isn't going to the market, he is not going to the market. Next, you are doing well. रुबीना आप बताइए, you are doing well. You're not doing well. तुम अच्छा नहीं कर रहे हो. You, very good. You aren't. You aren't की जगह you aren't. You are. Yeah. aren't नहीं बोलेंगे, you aren't doing well. तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो एग्जाम्स में, पढ़ाई में, जो भी कर रही हो ना, उसमें अच्छा नहीं कर रही हो. You aren't doing well या फिर you are not doing well. Very good. Next one. And I want to say something. I see your hand raised. Yes, I'm not able to see your screen. It's blank. Then you'll have to put your camera off and restart it. That will help perhaps. Everyone else, are you able to see? Yes, sir. Yes? Able to see. Yeah. Yes, sir. Okay. क्या कहा आपने दीप्ति? अभी मैं देख पा रही हूँ. I able to see. Am कौन लगाएगा? I am able to see. Are you able to see? मैंने ये तो पूछा आपसे. You are able to see. Are you able to see? तो आप कहेंगे yes sir, I am able to see. ठीक है? I I am. am able to see. हाँ, I able to see नहीं बैठेगा, उसमें आपको am लगाना पड़ेगा. I am able to see. राइट? क्योंकि जो able है ना, वो आपकी एडजेक्टिव है, वो आपकी क्वालिटी. हाँ, मैं able हूँ, मैं लायक हूँ, मैं कर पा रही हूँ. I am able. इस प्रकार से, राइट? Okay. Is it fine now for you, Arna? Are you able to see now? Yes, sir. Okay, Yeah, great, sir. great, perfect. Okay, we'll quickly move ahead. चलिए आप बताइए कृष्णमन्यु, next one आपके लिए. He is teaching English. Negative. कृष्णमन्यु. Sir, repeat question. या इसको अच्छे से बोलिए. Sir, could you please repeat the question? Sir, Sir, could you please, please ठीक है, मैं एक बार बोलता हूँ, फिर इस वाक्य को आप दोहराइए, उस प्रश्न को. Sir, could you please repeat the question? बोलिए. Sir, could you please this question? Yes, sir, could you please repeat the question? So I'm repeating the question. Krishmanu, question ये है, आपको इसका नेगेटिव बनाना है, वो है आपके लिए. He is teaching English. क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव? Sir, अपनी आएगा अपनी he doesn't. बेटा he is देख रहे हो आप यहाँ पे स्क्रीन पे, he is का नेगेटिव क्या होता है? क्या दिख रहा है आपको? बड़ा करूं, जूम करूं थोड़ा बहुत, या सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल? नो, Yes, sir. Yes, sir. Visible. विजिबल है. बड़ा अपने आप भी कर सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, लैपटॉप के ऊपर. चलिए बताइए कृष्णमन्यु, ही इज टीचिंग इंग्लिश का नेगेटिव क्या होगा? He aren't. बेटा ही के साथ He is not. He is not. हाँ, ही इज नॉट. तो पूरा बोलिए. Not teaching. हाँ, आगे इंग्लिश, राइट? सो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश. ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश. वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है. चलिए He रुबीना. is not teaching English. एब्सोल्युटली, इसका मतलब है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, राइट? रुबीना, you want to say something? No, sir. No, your hand was raised, that's why. Okay, next one. We'll ask quickly Sakshi. Sakshi, आप बताइए. You are buying a new car. You इसका नेगेटिव बनाना है. हाँ जी, नेगेटिव बना दीजिए फटाफट से. Could you repeat, sir? So the sentence for you is you are buying a new car. You aren't buying a new car. Very good. You aren't buying a new car. तुम नई गाड़ी नहीं खरीद रहे हो. You aren't buying a new car. अन्यथा you are not buying a new car. Absolutely correct. Okay, next one. We'll ask us. I don't know if I have. Manshi, आप बताइए. Manshi, आपके लिए है. I am reading a new book. I am reading a new book. Manshi, मैं एक नई किताब पढ़ रही हूँ. I'm not reading a new book. Very good. I am not reading a new book. I am not reading a new book. Right? I am not. Okay. Next. We'll move ahead. Deepti, आप बताइए. He is searching for a German teacher. He is searching for a German teacher. He isn't searching for German teacher. Exactly. He is not searching for German teacher. Perfect. He isn't. Yeah, he is not. Great. Okay. Next.
Next one is you can try now. Krishna Manu, can you be on mute please? Thank you. Arna, आप बताइए. I am learning German language. I'm not learning a German language. No, बेटा नहीं लगाना. I am not learning German language, right? I am learning German language. I am not learning German language, right? Okay, next. Yes. Okay, quickly we'll move ahead. Arbaaz, आप बताइए. I'm traveling now. I'm traveling now. I am not traveling now. हाँ, I am not traveling now. थोड़ा सा आपके क्या है कॉन्सेप्ट्स मैं देख रहा हूँ काफी क्लियर होते जा रहे हैं. अरबाज प्रोनाउंसिएशन में और थोड़ी मेहनत कीजिए. I am not traveling now. बोलिए I am not. I am not traveling now. वेरी गुड. आई एम नॉट ट्रैवलिंग. उनको थोड़ा सा शब्दों को और स्मूथली बोलिए, थोड़ा उनको रिस्ट्रिक्ट करके बोलिए, राइट? सो और उनमें क्लैरिटी आएगी आपके बोलते समय में. वंडरफुल. चलिए नेक्स्ट वन. वी हैव दीप्ति. दीप्ति आप बताइए फटाफट से. आई एम विजिटिंग माय फ्रेंड. Yes, sir. I am not visiting my friend. परफेक्ट. कृष्ण मन्यू आप बताइए. या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं दीप्ति? Sir, I ain't. आई एंट. I या am not visiting. my या हम जब आई एंट बोलते हैं ना तो फिर हम आई एंट पे रुक जाते हैं. आई एंट उसमें और ज्यादा हम लगाते नहीं है, इसलिए हम आई एम नॉट विजिटिंग माय फ्रेंड पूरा हम बोल सकते हैं, राइट? ओके नेक्स्ट. friend. Yes, sir. नेक्स्ट इज फॉर कृष्ण मन्यू. कृष्ण मन्यू आप बताइए. You have to say, Yes, sir. yeah, so the sentence for you is he has found a new job. He has found a new job. मैं आपके लिए स्क्रीन पे पहले ले आता हूँ नेगेटिव वाला. He has not वाला, रुकिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो. थोड़ी बहुत तो मैं आप लोगों की सहायता कर ही देता हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव. हाँ उससे practice नहीं हो पाएगी. अच्छा, तो नहीं दिखाता हूँ. चलो लो चलो, आप कह रहे हो तो. सर मत दिखाओ, अब हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो चुके हैं, तो ये लीजिए. बताइए. ओके कृष्ण मनी आप ट्राई करो. ही हैज फाउंड अ न्यू जॉब. इसका नेगेटिव क्या होगा? Sir, he has not found अ न्यू जॉब. वंडरफुल. नहीं डजन नहीं आएगा दीप्ति, आप डजन को छोड़ दीजिए. हैव हैज में हैज नॉट आएगा, हैजंट आएगा, हैवंट आएगा. याद है आपको? नहीं Yes, sir. तो बस बहुत सिंपल सा है. अब याद कीजिए एवरीवन. अब सब लोग साथ में बोलेंगे मन में पहले. आई हैव, आई हैवंट. You have, you haven't. He has, he Hasn't. hasn't. She has, she Hasn't. hasn't. It has, it Hasn't. hasn't. We have, we Haven't. haven't. And they have, they. They haven't. Very good. बस ये याद रखना है दीप्ति, आपको do या does नहीं लगाना, राइट? तो इसके दो तरीके. आप कैसे बोल सकते हो? I have, I haven't, I have not. I haven't बोलिए या I have not बोलिए, एक ही बात है. तो I haven't, I have not. You haven't, you have not. He hasn't, he has not. She hasn't, she has not. It hasn't, it has not. और अंत में दो we haven't, we have not. और एकदम अंत में they haven't, they have not. ये अगर आपको याद रहेगा तो मुंह से सही चीज ही निकलेगी. या Arna, you want to say something? So actually, I lost count. What sentence are we on? We are on the sentence which is, you can see on the message, it is he has found a new job. इसका हम नेगेटिव बना रहे थे, कृष्ण मन्यू ने बनाया he has not found a new job, जो बिल्कुल ठीक है. Okay, so thank you. Thank you. Next, quickly we'll move ahead and we'll ask Manshi. Manshi आप बताइए. Next one, it is he has transferred money. He has transferred money. He hasn't transferred money. Very good. He hasn't transferred money. उसने पैसा अभी ट्रांसफर ही नहीं किया है. He has not transferred money. Very good. अब देखिए दिमाग में फिट बैठ गया ना. He has, he hasn't. तो फटाफट निकल के आ जाएगा मुंह से. चलिए next. Next we have we have Pranjal. Pranjal आप बताइए. आपके लिए है सवाल. I have booked a ticket from Mumbai to Goa. I hasn't booked a ticket for Mumbai to Goa. बेटा I के साथ hasn't क्यों लगाया आपने, मुझे बताओ. I hasn't. Sorry. क्या बोलोगे? I Haven't booked a ticket from Mumbai to Goa. Exactly. और ए को हमें ए नहीं बोलना, हमको अ बोलना है जब वो इन जनरल होता है. I haven't booked a ticket. I haven't booked a ticket from Mumbai to Goa. Right? जो ए है ना, ए फॉर एप्पल वाला ए, उसको अ बोलते हैं हम हमेशा. लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे हम उसको ए बोलेंगे.
वो अभी कंडीशंस आई नहीं है, जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, राइट? सो आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है आई हैवंट बुक्ड अ टिकट फ्रॉम मुंबई टू गोवा, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव रुबीना। रुबीना बताइए, आई हैव बॉट अ न्यू कार। Could you please repeat? So my question to you is, Rubina, you have to translate or you have to change this sentence in negative, and the sentence for you is, I have bought a new car. I haven't bought a new car. I haven't bought a new car. Very good. I have not bought a new car. मैंने एक नई गाड़ी नहीं खरीदी है. Next, we have Sakshi. Sakshi, आप बताइए. My friend has met me in the metro. My friend has met me in the metro. My friend not. Ha- Sir, could you please? So the sentence is, my friend has met me in the metro. My friends have not met in the metro. Okay, चलिए आपने my friends कर दिया तो उस हिसाब से तो सही है. My friends haven't met me in the metro, right? मेरे दोस्त मुझसे नहीं मिले मेट्रो में, लेकिन सिंगल फ्रेंड था तो हमें क्या बोलना है? My friend hasn't met me in the metro. क्लियर है सभी को? मानसी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Is it the same thing? No, sir. और कुछ और कहना चाह रहे थे आप? No, sir. No, sir. सेम चीज बोलना चाह रहे थे आप? Yes, sir. ग्रेट, वंडरफुल. चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सरिता. सरिता, आप ट्राई कीजिए. द सेंटेंस फॉर यू इज, आई हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग. इसका नेगेटिव कर दो, मुझे बड़ी खुशी होगी. आई हैव नॉट. अजी ऑलरेडी नेगेटिव है. ये ऑलरेडी नेगेटिव है. ये ऑलरेडी नेगेटिव है. आई हैवंट, आई हैव नॉट. अरबाज ने लिखा आई हैव नॉट अंडरस्टूड. इसका पॉजिटिव कर दो इसका. I have understood anything. हाँ, पर फिर एनीथिंग का क्या बन जाएगा सरिता? Positive करना है ना सर? हाँ, पॉजिटिव करिए. तो आई हैव अंडरस्टूड Everything. एवरीथिंग. वेरी गुड. Anything. एनीथिंग का क्या बन जाएगा विपरीत? एवरीथिंग. जैसे आई थिंक दीप्ति ने कहा था ऑलवेज का नेवर हो जाता है ना, ऑलवेज का हमेशा का कभी नहीं, नेवर. वैसे ही सब एनीथिंग कुछ भी, लेकिन सब कुछ हो जाएगा एवरीथिंग. सो आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. सभी ये चीज कहना चाहते हैं कि आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग सर? यस और नो? Yes, sir. तो बोल के बताइए फिर. सर हम सब Yes, sir. Oh God, I got a no. Someone said no, sir. हम तो ये नहीं कहेंगे, अभी हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आया इसलिए. So I have understood everything या फिर I have not understood anything, right? जो भी आप कहना चाहें. चलिए next one. Quickly we'll go ahead with Arna. Arna, please make this one in negative. The sentence for you is, sentence is, you have gone to Delhi. We have to make it a negative. Yes. You have not gone to Delhi. Voila, exactly. You haven't gone to Delhi. You have not gone to Delhi, right? तुम दिल्ली नहीं गए हो, यानी अभी तुम दिल्ली में नहीं हो. Exactly. Next one we have Arvaz. I have finished my homework in the morning. I haven't Hmm. finished my homework in the morning. Very good. I haven't finished my homework in the morning. Exactly. अब देखिए आपके दिमाग में जैसे don't आया, आपको खुद को अटपटा लगेगा कि ये have don't तो कुछ होता ही नहीं अंग्रेजी में. So I haven't हो जाएगा आपका सही उत्तर. और अंत में दो और वाक्य हमारे पास. Next one we have दीप्ति. We have ordered a pizza. किसी ने पूछा अरे क्या ऑर्डर किया है, जल्दी बताओ, भूख लग रही है, क्या मंगवाया है आपने? तो आपने कहा oh we have ordered a pizza. लेकिन आपको कहना था दीप्ति हमने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है. तो We have don't ordered the pizza. आप इस डोंट को तो साथ ही लेके चलते हो हमेशा. इस डोंट को छोड़ दो आप. हैव के साथ हैव नॉट होता है, तो या वी के साथ है तो हैव नॉट हो जाएगा. तो क्या होगा दीप्ति? We के साथ we have. हाँ देखिए, हैव पकड़ में आ रहा है, हैव का नॉट कर दिया ना, हैव नॉट, हैवंट. We have. We don't. We haven't been. Sir, repeat the. हाँ, सेंटेंस है वी हैव ऑर्डर्ड अ पिज्जा. We have not ordered the pizza. एब्सोल्युटली, कितना आसान है. वी हैव नॉट ऑर्डर्ड अ पिज्जा. हमने पिज्जा नहीं ऑर्डर किया है. या we have not भी बोल के finish कर सकते थे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके पास लिबर्टी है. वी हैवंट, right? We haven't. We haven't, we have not, ये भी ठीक है.
लेकिन सिंस हम पूरे वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं नेगेटिव में, तो वी हैव नॉट ऑर्डर्ड अ पिज्जा। दैट्स करेक्ट। आपके सामने है ये सेंटेंसेस, सुन तो नहीं रहे, आप इनको देखिए, इनको लिखिएगा, इन पे मेहनत कीजिएगा। पेंसिल से, पेन से अपनी नोटबुक में लिखेंगे ना तो ही ये रिटेन होंगे, अन्यथा तो आप भूल जाएंगे इनको। बिलीव मी, इट इज वेरी ट्रू दैट दे माइट जस्ट डिसअपीयर लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वन। अंत में हमारे पास है फॉर कृष्णमन्यु। कृष्णमन्यु, द सेंटेंसेस आई हैव रिटन यू अ लेटर। मैंने तुम्हें एक पत्र लिखा है। आई हैव रिटन यू अ लेटर। बताइए। Sir, you would say I have not. बताइए क्या होगा कृष्णमन्यु? Sir, could you repeat this question? Very good. It's a beautiful thing you said. Sir, could you please repeat the question? बिल्कुल मैं repeat करता हूँ आपके लिए. So the question is, you have to translate, you have to change the sentence in negative, and the question for you, Krishnamanyu, is, I have written you a letter. Sir, definitely not. I have not. बिल्कुल, I have not. आगे वही का वो repeat कर दीजिए. I have not written. You a letter. I have not written you a letter. I have not written you a letter. या फिर I haven't written you a letter. Clear है यहाँ तक कृष्णमन्यु आपको? Yes or no, everyone? Be quick. Unmute करके बोलिए. समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. Perfect. अब इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए. अगर है तो उसको दुरुस्त करिए और उसको सुधार के आगे बढ़िए. Anyone who has made some other sentences, कोई और इसने होमवर्क किया है? फटाफट से बताइए. Quickly. सर रुबीना आपने किया है? बताइए. हाँ चलिए. Quickly. सर फॉर सिंपल प्रेजेंट हाँ. I read novel every night. Right. I read novel every night. He goes to apartment every day. She goes to the department every day. ठीक है. She cooks always. She cooks always. She always cooks. She always She always- cooks. वो हमेशा पकाती रहती है, मतलब खाना, ऑफ कोर्स लोगों को नहीं, वो खाना पकाती रहती है. She always cooks. ठीक है. और बताइए. You sing well. You sing well. You sing well. मतलब तुम अच्छा गाते हो, तुम अच्छा गाते हो. You sing well. Great. My mother goes to morning walk every morning. My mother goes for morning walk every morning. ठीक है. और फिर मॉर्निंग हटा दीजिए, वो क्या बड़ा रेपिटेटिव हो जाएगा कि मॉर्निंग वॉक एवरी मॉर्निंग. तो फिर आप ये बोल दीजिए माई मदर गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो वो समझ में आता है. अन्यथा माई मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे. फिर Okay. एवरी डे बोलेंगे ना, मॉर्निंग मॉर्निंग दो बार नहीं आएगा. ठीक है. और बताइए. They play cricket every evening. डे के साथ क्या लगाया आपने रुबीना? Sorry, they play cricket every evening. एग्जैक्टली. आपके कानों में ऐसे खरखश होनी चाहिए. ये दे प्लेज नहीं होता, दे प्ले होता है. इसको इतना रट लो, इतना पढ़ लो कि आपको डाउट हो जाए कि दे प्लेज नहीं है. दे प्ले क्रिकेट. आपने क्या बोला आगे रुबीना? दे प्ले क्रिकेट Every evening. एवरी इवनिंग. एग्जैक्टली. दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग. परफेक्ट. नेक्स्ट. We do yoga before starting class. वी डू योगा बिफोर स्टार्टिंग द क्लास. ठीक है. The sun rises from the east. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. बिल्कुल, ये तो सत्य बात है. राइट. व्हाट एल्स? My father catches a train at 9 o'clock every day. Okay, my father catches a train at 9 o'clock every day. ठीक है. It looks elegant. It looks elegant. ये कितना खूबसूरत दिख रहा है. It looks elegant. Wonderful. What else? The same sentence I write and continuous tense today. So now? नहीं, आपने कर लिया continuous tense, present continuous किया आपने. Yes. तो पहले Yes. पहले इसका नेगेटिव बनाते हैं फटाफट से. सो रुबीना, आप फटाफट से वापस एक बार सेंटेंस बोलिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट का. Okay. I read novel every night. I read novel every night. जल्दी से नेगेटिव आप ही बना दीजिए रुबीना, फिर बाकियों से पूछता हूँ मैं. I do not read novel every night. Perfect. I do not read novel every night. Second sentence आप दीजिए रुबीना, then I'll ask people to respond He for negative. goes to department every day. He goes to the department every day. Arna, he goes to the department every day. He
does not go to the department every day. Exactly, he doesn't go to the department every day. He does not go to the department every day. दीप्ति समझ में आ गया आपको? Does बहुत पसंद है आपको इसलिए. Then she always cook. Yeah, she always cooks. दीप्ति आप बताइए. She always cooks. अब आपने always यूज किया था दीप्ति. I'm sure आपको पता है इसका विपरीत always की क्या हो जाएगा? दीप्ति, always का opposite? Never. Never. तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? She never. She does, सुनिए. she never cook. बस she never cooks. She never cooks, right? क्योंकि जब कभी भी आप always लगाते हैं ना, देखिए आपने क्या कहा था? She always आपने कुछ बोला था. She always sings. She always sings. So always का जब negative करेंगे तो never आ जाएगा. आपने arrives करके बोला था ना दीप्ति. तो she always arrives on time. She always arrives on time. So always को हटाएंगे तो never लगाएंगे तो फिर does या do या ये सब नहीं लगता. She never arrives on time. इसी तरीके से जो अभी रुबीना ने कहा, she always cooks. She never cooks. ठीक है दीप्ति, समझ में आ गया? अगर रुबीना का सेंटेंस होता she cooks, तो बताइए दीप्ति क्या होता नेगेटिव? she cooks का नेगेटिव? She does not cook. वापस से दीप्ति. Cook. She does हाँ, not cook. मेरे कानों के अंदर ऐसे चुभता है she does not cooks बोलते हैं. मैं तो आपको एब्सोल्युटली कह रहा था, देर मेरे को कुक्स सुनाई और देगा. मेरे साथ हमारे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए. हो जाएगा. अब आप मेरे साथ रहोगे और आप मेरे को परेशानी होगी तो आपको भी परेशानी होने लग जाएगी. आपके कानों में लगा ये गड़बड़ कुछ बोला. she does not cook, she doesn't cook, right? she cooks, she doesn't cook, right? okay, great. चलिए रुबीना अगला बताइए प्लीज. You sing well. you sing well, तुम अच्छा गाते हो. anyone quickly हाथ रेस कीजिए फटाफट से. साक्षी. You are not sing well. ये तो आपने कौन सा वाक्य बना दिया अजीब सा. you are not sing well, ये तो क्या हुआ? अच्छे से बताइए साक्षी. come on. you sing well का नेगेटिव. You sing well. you sing well का नेगेटिव बताइए. नेगेटिव कैसे बनता था? You don't sing. हाँ, you do not sing well, you don't sing well. याद है आपको साक्षी? Yes, sir. देखिए जो सिंपल प्रेजेंट है ना उसका डू और डज से नेगेटिव बनता है. उसमें और कुछ नहीं लगता. ing और आर, एम, इज, आर कुछ नहीं लगता. सो जो रुबीना ने कहा you sing well, you don't sing well, तुम अच्छा नहीं गाते हो, you don't sing well. Okay, next. Yes. रुबीना. My mother goes for a walk every morning. Exactly, my mother goes for a walk every morning. Anyone नेगेटिव बताइए. मानशी ट्राई कीजिए आप. My mother does not goes for a walk. सभी को अच्छा लगा? इसमें कुछ गड़बड़ लगी? My mother does not go. देखिए अब दीप्ति ने खुद ने कह दिया सर गो होगा, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा गोज इन्होंने कहा. तो exactly that's true. So my mother doesn't go या does not go for a walk every morning. Absolutely. ठीक है मानसी, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. जब do या does लगा दिया है तो फिर goes नहीं होगा, go होगा, eat होगा, drink होगा, sleep होगा, write होगा. समझ में आ गया आप सभी को? इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. Yes, sir. ओके चलिए रुबीना नेक्स्ट. They play cricket every morning. वेरी Every गुड. evening. एवरी इवनिंग. चलिए कोई बात नहीं, सुबह खेलें शाम को खेलें क्या फर्क पड़ता है. बट आपने ये काम अच्छा किया, आपने प्लेस को प्ले कर लिया, आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया. वेरी गुड. दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग. बताइए एनीवन. Don't play. चलिए दीप्ति आप बता दीजिए. They don't play cricket every morning. आर यू श्योर दे डोंट प्ले Every क्रिकेट? evening. हाँ कोई बात नहीं, मॉर्निंग है इवनिंग है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. बट क्या होगा दीप्ति? आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं. दे डोंट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग या फिर दे डोंट प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग. ये ऐसा आएगा सर, plays. चलिए मैंने आपको कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए. दे डोंट नहीं, प्लेज या दे don't- डोंट प्ले? Yes, sir. He, she और उसके साथ ऐसा आएगा. नेगेटिव में आता है एस? नेगेटिव में तो किसी के साथ भी नहीं आता ना दीप्ति. नहीं, नेगेटिव में तो किसी के साथ भी एस एक्स्ट्रा नहीं आता है. क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था कि नेगेटिव में डू और डज के साथ हमारा बनेगा नेगेटिव. डज नॉट, डू नॉट. और जब डू नॉट और डज नॉट होता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? पूरी हमारी क्रिया. राइट?
इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर है आपको? Yes, sir. राइट तो हो जाएगा आपका शी आई मीन दे डू नॉट प्ले, राइट? दे डू नॉट प्ले, आपको दे डू नॉट प्लेज नहीं बोलना, तो ये आप चीज का ध्यान रखिएगा, राइट? ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। रुबीना आगे बताइए, आगे कौन सा आपका था सेंटेंस? Yes, sir. हाँ, Then we do yoga every morning. या वी डू योगा एवरी मॉर्निंग। एनीवन नेगेटिव बताइए फटाफट से। मानसी ट्राई कीजिए। No, we don't yoga every morning. We don't yoga before start. वाकई आपने तो सेंटेंस क्या था? सेंटेंस ये था वी डू योगा बिफोर आवर क्लास। रुबीना, वाज इट दैट वी डू योगा बिफोर आवर क्लास? Before starting our class. बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास, सो वी डू योगा बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास। मानसी, We don't yoga before our starting. ओके चलिए, बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास तो सेम ही रहेगा, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं, वो सही कहा आपने, क्योंकि वाक्य लंबा इसलिए आप भूल रहे हो, लेकिन शुरुआत में तो कोई गड़बड़ कर रहे हो आप मानसी। वी डू योगा का नेगेटिव क्या होगा? रुबीना, वी डू योगा Don't. या Does not. We do not do yoga. एग्जैक्टली अभी कंफ्यूजन क्या हो गया? मानसी को लगा कि डू नॉट के बाद फिर से डू कैसे लगा दूं मैं, तो ऑफ कोर्स लगाना पड़ेगा। वी डू नॉट डू योगा, वी डोंट डू योगा, क्योंकि आपको डोंट के बाद डू लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्य क्रिया थी वो डू ही थी, तो वी डू नॉट डू योगा। समझ में आ गया आपको मानसी? Yes, sir. है ना कि आपके दिमाग में एकदम से प्रोसेस नहीं कर रहे, डोंट के साथ फिर से डू, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन वो सही है। वी डोंट ईट बोलते हैं, वी डोंट स्लीप बोलते हैं, वी डोंट सिंग बोलते हैं, तो वी डोंट डू भी बोलते हैं, इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। रुबीना और बताइए। The sun rises from the east. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, इसका कोई नेगेटिव कर सकता है क्या? ये तो एकदम परफेक्ट वाला एक हाँ, तो लेकिन चलिए बनाने के लिए बना लेते हैं वाक्य। रुबीना आप ही बताइए इसका नेगेटिव। The sun do not rise. The sun doesn't rise from the east. एग्जैक्टली, द सन डजंट राइज फ्रॉम द ईस्ट, एग्जैक्टली। चलिए, डज नॉट या डजंट, परफेक्ट। नेक्स्ट रुबीना। My father catches a train at 9 o'clock every day. My father catches a train at 9 o'clock every day. बताइए, एनीवन नेगेटिव में? अरवाज आप बताइए, आपको सुना नहीं मैंने बहुत देर से। एंड देन प्रांजल आपसे पूछूंगा मैं, सरिता आपसे पूछूंगा। अरवाज, my father catches a train at 9 o'clock every day. Repeat the sentence. My father catches a train at 9 o'clock or 9 p.m. every day. My father Catches a train का नेगेटिव क्या होगा? Catches a train. my father don't catch the train आप in लोग morning. हाँ, आपको डोंट बहुत पसंद है सब लोगों को। थर्ड पर्सन के साथ डोंट क्यों लगा रहे हो आप? Doesn't. हाँ, doesn't. My father doesn't catch a train at 9 in the evening. मेरे पापा 9 बजे वाली ट्रेन नहीं पकड़ते हैं, या वो 9 बजे वाली कोई ट्रेन नहीं लेते हैं। My father doesn't catch any train or a train at 9 in the evening. Right? Clear है दीप्ति आपको? Yes, sir. या दूसरों के फटाफट हमारे को पकड़ में आ जाती गड़बड़े, ऐसा ही होता है ना सभी के साथ। कोई और बोलता है तो हमें फट से हमें समझा कुछ गड़बड़ है, पर हम बोलते हैं तो होता क्या है कि हमको बोलना भी है, साथ में सोचना भी है, साथ में इतने कंस्ट्रक्शन दिमाग में, सो वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स, व्हिच इज बिल्कुल यही होता है ना। जैसे लोगों को बहुत सुनिए, उनकी गलतियां भी ढूंढिए, ऐसा नहीं कि गलती ढूंढने बैठे हम, लेकिन उनकी गलतियों से अपने आप को इंस्पायर कीजिए कि मुझे गलती नहीं करनी, राइट? सो इंश्योर कीजिएगा, एंड दैट इज नॉर्मल। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि व्हेन समवन एल्स स्पीक्स वी कैन आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इमीडिएटली, बट व्हेन वी स्पीक, सर मैंने तो नहीं बोला, मुझे याद ही नहीं मैंने कब बोल दिया। बिकॉज होता क्या है, जब हम बोलते हैं तो सोचते हैं, तो बोलने और सोचने में इतना क्विक होता है काम कि वी डोंट इवन रिकॉल कि हमने कहाँ मिस्टेक कर दिया, एंड दैट्स नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसलिए हमेशा अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया कीजिए। ये अब आगे आने वाले दिनों में एक्टिविटी दूंगा, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग भेजेंगे। मैं देखता हूँ आप लोग ग्रुप पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है, मैं होमवर्क डालूंगा, अब आपको सारे वाक्य जो है वो उसमें भेजने पड़ेंगे रिकॉर्ड कर करके, वरना क्लास में इतना बोलना मुश्किल होता है। वहां पे मैं फटाफट आपको चेक करके रिप्लाई कर दूंगा, ये गलत बोला, ये सही बोला, ये बहुत अच्छा बोला, राइट? आर यू ऑल अप फॉर दैट? आर यू ऑल ओके फॉर दैट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We do.
हाँ, you will have to do, please do it. You इसका WhatsApp का हम अधिकतम सदुपयोग करते हैं, वरना फिर कोई मतलब ही नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. रुबीना, आप बताइए नेक्स्ट सेंटेंस. Looks elegant. Which one? It looks elegant. It looks elegant. बहुत शानदार लग रहा है. Okay, Pranjal, it looks elegant. It does not look elegant. Exactly. It doesn't look elegant. इतना कहाँ शानदार कहाँ लग रहा है? It doesn't look elegant. शानदार नहीं लग रहा. Perfect. Next one, रुबीना. So then continuous. हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ जाइए. याद है सभी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस? फटाफट एक एक वाक्य बताएंगे मुझे सब लोग. देखता हूँ किस किस को याद है कंटिन्यूअस. एक I एक. am going, हाँ, अरबाज, आई एम going to market. गोइंग टू द मार्केट. मैं मार्केट जा रहा हूँ, यानी वो एक्शन हो रहा है. चलिए और बताइए फटाफट से, कोई भी एक एक सेंटेंस बताइए, फिर रुबीना के सारे सुनेंगे हम. सेंटेंसेस नेगेटिव भी करेंगे. प्रांजल, आप बताइए एक सेंटेंस. I am reading a book. आई एम रीडिंग अ बुक. बेटा आप ध्यान रखो, ए नहीं बोलना, अ बोलना है. आई एम रीडिंग अ बुक, राइट. ए कब बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक केस है, वो अभी हमें काम में नहीं आएगा, तो हमें सिर्फ अ बोलना है. ए होता है जब उसकी एक संख्या होती है ना, एक संख्या 1, तब उसमें ए बोलते हैं. लेकिन हमें अभी एक कोई भी किताब है ना, इसलिए आई एम रीडिंग अ बुक, ये हमें ध्यान रखना, राइट. ओके. I'm studying. या दीप्ति, आई एम स्टडिंग. मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ. आई एम स्टडिंग. परफेक्ट. अर्णा, आप बताइए. I am eating food. आई एम ईटिंग फूड. मैं खाना खा रही हूँ. साक्षी. She is dancing. शी इज डांसिंग. वो डांस कर रही है. मानसी, आप बताइए. She is listening music. शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक. शी इज लिसनिंग म्यूजिक भी बोलते हैं, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक भी बोलते हैं. जब हम टू लगाते हैं ना, तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, और जब हम बोलते हैं शी इज लिसनिंग म्यूजिक, तो थोड़ा पैसिवली सुनते हैं. शी इज लिसनिंग म्यूजिक या शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, दोनों ठीक है. चलिए आगे है हमारे पास कृष्ण मन्यु, आप बताइए. Question. बताइए आप क्या बताएंगे, बताइए. Sir, इसे मालूम तो नहीं है कौन सी. सॉरी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. क्या बोल रहे हैं आप कृष्ण सर मन्यु? मुझे मालूम नहीं कि क्वेश्चन मतलब कौन सा है. ओहो, आपको एकदम अलर्ट रहना है क्लास के अंदर. हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. आपको बेटा बताना है एक ऐसा वाक्य जिसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम एक सेंटेंस देंगे. जैसे आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं, वैसा बताइए कोई सेंटेंस. आई एम. I am singing. ठीक है, आई एम सिंगिंग, आपने वही रिपीट कर दिया. सो आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं. एंड लास्ट सरिता, आप बताइए फटाफट से. सरिता, कैन यू हियर मी? Yes, sir. But- We are doing great work. ओह वंडरफुल, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क. हम बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं. मतलब आपने तो पूरे टीम का एकदम मोटिवेशन हाई कर दिया. इज इट ट्रू एवरीवन? सरिता ने आप सभी के दिल की बात बोल दी. Yes, sir. इसमें तो सब अनम्यूट करके यस बोलिए, सबसे आगे आएंगे. जब मैंने कहा होमवर्क करते हो नहीं करते हो, तो सब म्यूट करके और चुप हो गए. और जब सरिता ने कहा वी आर डूइंग अ ग्रेट वर्क सर. नहीं सर, मैंने सारा work किया. क्या कह रहे हैं आपने? सिर्फ खुद के लिए बोला था? चलिए, इट्स ओके. सो वी आर डूइंग अ ग्रेट वर्क. सो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था. दैट्स व्हाट शी वांटेड टू क्लैरिफाई, बट नेवरदलेस कोई बात नहीं, हम यहीं पे मान लेते हैं कि हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दैट्स ट्रू, वी हैव टू अप्रिशिएट आवरसेल्व्स. चलिए फटाफट से रुबीना के सेंटेंसेस पे चलते हैं और इनका नेगेटिव बनाते हैं. रुबीना, नेक्स्ट बताइए. Sir, I am writing an article. आई एम राइटिंग एन आर्टिकल. आई एम राइटिंग एन आर्टिकल. बताइए मानसी. नेगेटिव क्या होगा मानसी, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल का? I am not writing article. Exactly. I am not writing an article. I'm not writing an article. मैं एक शोध पत्र या मैं कोई एक लेख नहीं लिख रही हूँ. Perfect. Next, रुबीना. Yeah, next one, रुबीना. Okay. You are going to You are going to? market. You are going to the market. You are going to the market. अर्णा बताइए, you are going to the market. You are not going to the market. You are not going to the market. You aren't going to the market, right? दोनों ठीक है. You aren't going to the market. You are not going to the market. Perfect. Next one, रुबीना.
बताइए नेक्स्ट. Hello. Yeah, Rubina. Am I audible? Yeah, you're audible. Absolutely. Okay. He is watching. He is watching new episode on television. He is watching an episode on the television. He's watching an episode on the television. Right. इसका नेगेटिव हम देखते हैं. दीप्ति आप बताइए. Sir, I know that episode. क्या लिखा आपने रुबिना? He is watching a new episode on television. Okay, he's watching a new episode on the television. ठीक है. आप बताइए दीप्ति इसका He is नेगेटिव. not- Yeah. he is not watching a new episode on television. Very good. He isn't. Very good. Perfect. He isn't watching. He is not watching. Great. Next, Rubina. She is having a coffee. She's having a coffee. She is having a coffee. वो एक कॉफी ले रही है या पी रही है, दोनों ठीक है. चलिए आप बताइए. प्रांजल. प्रांजल, are you there? Yeah, प्रांजल बताइए. प्रांजल, she's having a coffee. Negative. सरिता आप ट्राई कीजिए. She's having a coffee. Negative क्या होगा? She is not having the coffee. Very good. She is not having a coffee. She isn't having a coffee. She isn't having a coffee. Correct. Perfect. Okay, next one. Rubina. Yes. Oh, it is raining. It is raining. बारिश हो रही है. प्रांजल, इसका नेगेटिव बताओ. It is raining. It is not raining. It is not raining. Yeah, it isn't raining. It isn't raining. बारिश नहीं हो रही है. It isn't raining. Perfect. Rubina, next. They are shouting in the class. They are Shouting. shouting. थोड़ा सा और इसको अच्छे से इसका उच्चारण कीजिए. Shouting. Shouting. स नहीं श. They are shouting in the Sh. class. हाँ, श. Shouting. Very good. Okay. एक साथ They are बोलिए. shouting. Yeah, they are shouting in the class. Okay. क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव? I'll ask साक्षी. They are shouting in the class. वो शोर मचा रहे हैं कक्षा में. They aren't class in the They aren't. shouting in the class. They aren't shouting in the class. They are not shouting in the class. Very good. Perfect. चलिए next one, Rubina. We are exciting to celebrate a birthday. We are exciting to celebrate the birthday. We are exciting में थोड़ी सी गड़बड़ है. We are excited. Oh. है ना? We are exciting नहीं होगा. We are excited. ये हो सकता है. देखिए, एक्साइटेड क्या होता है? एक स्टेट है, एक अवस्था है कि हम बहुत उत्साह में हैं, हम जोश में हैं, राइट? हम उत्साहित हैं. वी आर एक्साइटेड. लेकिन आप एक्साइटिंग भी काम में ले सकते हो, जैसे दे आर एक्साइटिंग. यानी वो जो भी चीज है, वो जो भी वस्तु है, या वो जो भी लोग हैं, दे आर एक्साइटिंग. यानी वो एक्साइटमेंट देते हैं. दे आर एक्साइटिंग. But I'm And then we can change it. We are celebrating a birthday. okay. You can change it. That's easier. We are celebrating the birthday. We are celebrating the birthday. Okay, I'll quickly check with Arvaz. Arvaz, बताइए, we are celebrating the birthday. इसमें बनाना सर इसको. किस में बताएंगे? बताइए. We are celebrating the birthday को अभी नेगेटिव में तो बनाएंगे. और बताइए. The aren't celebrating birthday. तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए. ऐसे कैसे आप बोलेंगे? एकदम दम लगा के जोश के साथ बोलिए. बोलिए. They aren't celebrating birthday. हाँ. हम वी से चले थे और आप दे पे ले गए. सो वी आर्ट सेलिब्रेटिंग द बर्थडे या फिर दे आर्ट सेलिब्रेटिंग द बर्थडे. ठीक है, दोनों सही है. देखिए, बोलते समय आई वांट यू ऑल पीपल टू बी एनर्जेटिक एंड टू स्पीक क्लियरली एंड टू हैव एन इंटोनेशन व्हिच इज करेक्ट. अगर आप सही उच्चारण नहीं देंगे, स्पष्ट नहीं बोलेंगे, तो मैं आपको करेक्ट नहीं कर पाऊंगा. सो प्लीज इंश्योर दैट यू स्पीक क्लियरली. ओके, नेक्स्ट वन, रुबिना. My friends are enjoying to see the sea. My friends are enjoying to see The sea. the sea. S-E-A, right? My friends are enjoying to see the sea. Yes, yes. Okay, my friends are enjoying to see the sea, but मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि my friends are enjoying the sea view. वो जो sea का view है ना, हम उसके enjoy. या अर्ना. So down there
My friends are excited to see. See, when you say excited, उसके अंदर हम excited as an adjective काम में ले रहे हैं. हम जब present continuous की बात करते हैं ना, वहां पे हमारा verb होता है जो ing form लेता है, तो हम भी उस पे काम करें, right? So जो अभी इन्होंने कहा ना, रुबीना ने इन्होंने कहा my friends are enjoying, वो enjoy वाला जो verb है उसका ing form है. जो आप कह रहे हो अर्णा वो excited है, वो adjective है, right? So वो अलग चीज है इस वजह से. समझ में आ गया आपको अर्णा? राइट. सो रुबीना का सेंटेंस है माई फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग द सी व्यू. मेरे जो दोस्त हैं वो सब आनंद उठा रहे हैं किसका? सी व्यू का. तो आप क्या करेंगे इसमें रुबीना? आप टू सी द सी को हटा के उसको शॉर्ट कर देंगे माई फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग द सी व्यू. बताइए इसका नेगेटिव क्या होगा? My friends are not enjoying the sea view. एग्जैक्टली, माई फ्रेंड्स आर नॉट एंजॉयिंग द सी व्यू. पता नहीं कैसे हैं, सी व्यू इतना शानदार है फिर भी उनको बिल्कुल आनंद ही नहीं आ रहा. चलिए नेक्स्ट रुबीना. My supervisor is interacting with the participants in the workshop. वो आपने तो पूरा अपने प्रोफेशन उठा के एकदम लंबा सा वाक्य बना दिया. My supervisor is interacting with the participants in the workshop. मतलब सबको आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, सुपरवाइजर को भी, वो क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं. चलिए ये नहीं बताया आपने क्यों कर रहे हैं. ओके ओके ग्रेट. सो बताइए, आप ही बता दीजिए. इतना लंबा वाक्य तो आई एम श्योर कोई भी रिटेन नहीं कर पाएगा. नेगेटिव. My supervisor is not interacting या with the participants in the workshop. ओके, तो उनको कहिएगा इंटरेक्ट करें. सो माय सुपरवाइजर इजंट interacting with the participants in the workshop. So he should or she should. Chaliye. Okay. Any other sentence, Rubina? Yes, last one. The flower is blooming in the garden. The flower is blooming in the garden. कितना beautiful sentence है. The flower या the flower, दोनों pronunciation largely ठीक मानते हैं, लेकिन flower is better. The flower is blooming in the garden. बताइए क्या मतलब है इसका? वाक्य का मतलब क्या पहले रुबीना ये बता दीजिए. बड़ा पोइटिक सा वाक्य है. सर हिंदी में तो थोड़ा ओफ मुझे इतना अच्छे अच्छा. नहीं आता. चलिए कोई बात फिर नहीं. मैं कोशिश करती हूँ कीजिए. क्योंकि, हाँ. वो जो फूल है वो गार्डन में बहुत ज्यादा क्या बोलते ओके चलिए कोई बात नहीं. Blooming. ब्लूमिंग इज वो खिल रहा है, राइट? सो द फ्लावर खिल इज रहा है. खिल रहा है ना, खिलना खिलना. चलिए बहुत अच्छी बात है. ओके सो दीप्ति आप बताइए, द फ्लावर इज ब्लूमिंग इन द गार्डन. The flower is not blooming in the garden. एब्सोल्युटली. द Isn't? या इजंट. वेरी गुड ग्रेट. Sir, हाँ बोलिए दीप्ति. sir, मैंने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बनाए थे. तो आप बताइए तो फिर. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड पकड़िएगा सब लोग फटाफट से. पहले रुबीना का एक बार चेक कर लेते हैं कुछ बचता है क्या. रुबीना आप बताइए कुछ बच रहा है सेंटेंस. और तीन ही प्रेजेंट परफेक्ट का बनाए थे और कंप्लीट नहीं कर पाए. ओके प्रेजेंट परफेक्ट रेडी है आपका? तीन है. तीन ही है तो उनको पूरा आप करिएगा 10 तक. उनको कल की क्लास में हम स्पीड से देखेंगे और आगे हम बढ़ते हैं. एनीवे सो दीप्ति यू हैव प्रेजेंट कंटीन्यूअस राइट? Yes, sir. चलिए दीप्ति सुनाइए फटाफट से. पॉजिटिव सुना दीजिए. Yes, positive. Kuber is teaching his mother. Kuber is my son. Kuber is teaching his mother. राइट. कुबेर I इज am टीचिंग. teaching. या आई एम टीचिंग. राइट. I am teaching my mother. I am studying from my son. आई एम स्टडीइंग फ्रॉम माय सन. राइट. He is studying ही इज स्टडीइंग. from his mother. ओके फ्रॉम हिज मदर. और Ram is studying for his exam. राम इज स्टडीइंग फॉर हिज एग्जाम्स. ठीक है. He is not playing golf tomorrow. शी इज इन प्लेइंग गोल्फ टुमारो. शी इज नॉट प्लेइंग गोल्फ टुमारो. ओके नेगेटिव बना दिया आपने, कोई बात नहीं. ठीक है अच्छा है. और बताइए. They are making dinner now. दे आर मेकिंग डिनर. मेकिंग की जगह आप बोलिए दीप्ति दे आर प्रिपेयरिंग. दे आर प्रिपेयरिंग. यू प्रिपेयर द डिनर राइट. दे आर प्रिपेयरिंग डिनर नाउ. मेकिंग की जगह प्रिपेयरिंग. Okay, sir. और बताइए. The company is having dinner now. द कंपनी इज हैविंग डिनर नाउ. ठीक है. कंपनी जो है वो क्या है कि लोग नहीं दिख पा रहे, तो आप बोलो द एम्प्लॉइज, द वर्कर्स, है ना. एम्प्लॉइज, क्योंकि कंपनी तो निर्जीव होती है तो वो कैसे डिनर कर सकती है ना. द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, द वर्कर्स ऑफ द कंपनी आर हैविंग डिनर नाउ. और बताइए. She is eating dosa या for lunch right now. she's eating dosa in lunch right now. In lunch right now. Yes, sir. Yeah. In lunch. Hmm. Yes, sir.
Okay, great. Perfect. Anyone else for a few more sentences? I think अब आपको negative तो आ ही गया होगा. Yes, sir. Right. Anyone else जिसने बनाए हैं? बताइए बताइए. Yeah, Arna, I want to say quickly something. Yeah, I made sentences simple present tense. You want to say something? I made sentences on simple present tense. Okay. Yeah, you want to say it right away? Yeah. बोलिए. I'll just quickly get you that अभी जो दीप्ति ने बोला, she is having dosa in lunch, that makes sense, and she is having dosa for lunch. I think आपने for भी बोला था, तो वो भी चलता है. For भी सही है. आप in भी बोल सकते हैं, for भी बोल सकते हैं. चलिए, बताइए अर्णा, फटाफट से आपके sentences. We work at the same company. We work at the same company. ठीक है. She studies for an exam on weekend. She studies for her exam on the weekend. ठीक है. She checks her email first thing in the morning. She checks her emails as the first thing in the morning. ठीक है. We take the bus to work every day. We take the bus to the work, or yeah, for the work every day. Yeah. He reads a book before going to bed. Perfect. He reads a book before going to the bed. Perfect. Next. He is exercising at the gym. He is Exercising. अब आप ing पे आ चुके हो. He is exercising at the gym. ठीक है. The sun rises in the east This- and sets in the west. Absolutely. The sun rises in the east and sets in west. इसका मतलब है ये simple present tense है. और बताइए. She watches TV in the evening. She watches television in the evening. Perfect. और बताइए. My mother cooks food every day. My mother cooks food every day. My mother cooks delicious food every day. Perfect. और बताइए. The dog is sleeping. The dog is sleeping. So फटाफट निकल जाइए. Yeah, so done. Done? That's it? Okay, great. Since the dog was sleeping, we could have easily done our work. Okay, perfect. Anyone else would like to share their sentences? किसने आज बहुत ज्यादा बात नहीं करी है? सरिता, आप समझ गए सब चीजें? You have understood everything? सरिता, आप शेयर करना चाहेंगे कोई sentences आज? सरिता, सर मैंने सब कर दिया. आपने Yes, sir. आपने किया है? मैंने सब कर दिया है homework. अच्छा, आपने पूरा होमवर्क कर लिया है? जिन जिन का होमवर्क हम क्लास में, देखिए क्लास में सभी का होमवर्क चेक कर Yes, पाना sir. थोड़ा सा मुश्किल. आप इस चीज को समझ सकते हैं. या तो हर व्यक्ति थोड़े 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 वाक्य बना के मुझे सुना दे तो अच्छी बात है, अन्यथा अदरवाइज व्हाट यू कुड डू इज दैट हमेशा ग्रुप के अंदर अपने अपने सेंटेंसेस डालेंगे, भेजेंगे, एक दूसरे को थम्स अप देंगे अच्छे काम के लिए. करेक्शन होंगे तो चेक करेंगे, करेक्शन डालेंगे एक दूसरे का, एक दूसरे के लिए. मैं उसमें अपने इनपुट्स दूंगा. इससे क्या होगा कि मेहनत करेंगे. अकेला व्यक्ति करेगा उसके बजाय 10 जने मिलकर करेंगे. जस्ट इमेजिन कितनी आपको सीखने को चीजें मिलेंगी. पहली बात. दूसरी बात, अपनी आवाज रिकॉर्ड करने का काम अब चालू कीजिए और ग्रुप के अंदर अपनी आवाज रिकॉर्डेड भेजिए. उससे क्या होगा, एक तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा आपको अपना खुद का. दूसरा, आप बोलते समय गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं वो आप उसको रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो आपको पता चलेगा. और तीसरा, मैं उस पर कोई चेंजेस आपको दे पाऊंगा जब मैं उसको सुनूंगा अच्छे से. तो क्लास में सभी को सुनना एट टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, सो प्लीज इंश्योर दैट यू शेयर ऑल योर रिटन स्टफ एंड योर स्पोकन स्टफ इन द व्हाट्सएप ग्रुप. क्लियर है सभी को? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. All right. So we'll just quickly check. Sarita, you are saying you have done your homework. I do yoga every day with my mother. Okay, that's good, Arna. It's interesting. You have to do. One has to do yoga. Okay, Sarita, you want to share quick 3-4 sentences? Yes, sir. हाँ, बताइए. सर कौन सा आप दो आप सिंपल प्रेजेंट के बता दीजिए, दो आप बता दीजिए आईएनजी कंटिन्यूअस के, और दो आप प्रेजेंट परफेक्ट के बता दीजिए अगर आपने सारे बनाए हैं तो. Yes, sir. बताइए. She is simple present tense, sir बता रहा हूँ. She is play piano every morning. वापस बोलिए. She is those
does not play piano every morning. ओके एक सेकेंड, She does not piano every morning. वेट सरिता, एक एक करके चलते हैं, वापस बोलिए आप, वापस से शुरू से। She is play piano every morning. ओके रुकिए, यहाँ पे कुछ She is सर does not. सरिता शी इज, क्या बोल रहे हैं आप? पहला वाला वाक्य वापस से बोलिए प्लीज, थोड़ा रुकिए उसके बाद। She is play ओके, शी इज प्ले, यहाँ piano हाँ, इन द morning, piano every morning. एवरीवन। यहाँ पे कोई गड़बड़ है? एनीवन, कोई हेल्प कर सकता है हमें सरिता को हेल्प करने में? शी इज, the sentence what she is reading out is she is plays piano every morning. She is playing. Original might be verb. She is playing the piano. Okay. No, she plays piano every morning. Okay, चलिए एक बार फिर Or से। she is playing piano. Okay, right, so we'll just quickly check again with सरिता आपका क्या सेंटेंस है? She is play piano every morning. ओके, अब देखिए शी इज प्ले, तो अब आप इसमें ध्यान रखिए सरिता, आपने क्या किया, दो चीजों को मिक्स कर दिया। एक तो हो जाएगा शी इज प्लेइंग पियानो, ठीक है, वो पियानो बजा रही है, या फिर आप बोलिए सरिता शी प्लेज पियानो एवरी मॉर्निंग। अब ठीक है, Yes, sir. आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, एक नया कोई आपने नया कोई वाक्य बनाया, इसका कोई सेंस नहीं है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, शी प्लेज पियानो एवरी मॉर्निंग, वो हर दिन पियानो बजाती है, अन्यथा अदरवाइज शी इज प्लेइंग पियानो, तब एवरी मॉर्निंग नहीं आएगा, क्योंकि वो बजा रही है तो हर सुबह थोड़ी, वो तो अभी बजा रही है ना, इसलिए शी इज प्लेइंग पियानो। क्लियर है आपको सरिता? एवरीवन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट बताइए सरिता। या नेक्स्ट, We study English every day. वापस बोलिए प्लीज। वी Study English every day. परफेक्ट, वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे, हम हर दिन अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे। इसका नेगेटिव क्या होगा सरिता? We don't study English every day. एब्सोल्युटली, वी डोंट स्टडी इंग्लिश एवरी डे, एकदम सही है। और बताइए। और present continuous tense था? हाँ बताइए प्लीज। दो। हाँ दो बताइए। We are watching movie. परफेक्ट, वी आर वॉचिंग मूवी, हम फिल्म देख रहे हैं। नेगेटिव कर दीजिए इसका सरिता। We are no watching movie. Absolutely, we are not No. watching movie. Yeah, we aren't watching movie. Correct. Next. She is cooking food. Right, she's cooking food. Negative. She is not cooking food. Very good. She is not cooking food. She isn't cooking food. Very good. और बताइए कुछ फटाफट से। He is drinking lemon tea. He is drinking lemon He tea. is not drinking lemon tea. Very good. और इसको थोड़ा सा और अच्छे से बोलिए सरिता। लेमन बोलिए। लेमन। Lemon. हाँ लेमन ही, लेमन लेमन, Lemon. ले नहीं है, लेमन। ट्राई कीजिए, लेमन टी। ठीक है, लेमन टी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Lemon. हाँ, ले नहीं है, Lemon tea. हाँ लेमन, लेमन बहुत सॉफ्टली बोलना, लेमन टी, नॉट लेमन, लेमन टी। ठीक है, मेहनत कीजिएगा इस पे। What I'm trying to say is, what I'm trying to say is that you all speak largely it is correct what you're saying, but you have in terms of your pronunciation, but you have to redo it in a way it is soft, it is pleasant and it is smooth to the ears. बहुत pleasant way में आना चाहिए, बहुत soft होना चाहिए, right? तो इस पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे 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 pronunciation पे भी और काम कीजिएगा आप। Okay, anyone for anything, any questions, anything you'd like to ask me? और किसी के बच गए sentences जो share करना चाहे फटाफट से? प्रांजल, आपने कुछ बनाए हो sentences अगर? Anyone? I really liked today's session. Why? Because you people spoke a lot. I really liked today's session because you people spoke a lot. आपने बहुत बोला आज, and that's perfect. That's great because when you speak,
you get to hear yourself. You get to hear yourself and you can actually find if you're correct or you're not correct. You can correct yourself if you're not correct, right? So it's very important that you speak a lot. आखिरकार इन क्लासेस का क्या नाम है? स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. इसमें अगर बोलेंगे नहीं तो फिर बोलेंगे कब, right? Okay, so with that I'll quickly show a last topic to you for the day. 2 मिनट में आपको दिखा के मैं रैप अप करता हूँ. हमने कल थोड़ा सा, आपको याद होगा, हमने फ्यूचर टेंस पे चर्चा की थी. उसको हम कैसे बनाते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि हम उसके साथ आज की क्लास को रैप अप करेंगे और मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको करना होगा. ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, जो फ्यूचर टेंस है एवरीवन, इज इट विजिबल टू यू द स्क्रीन? इज इट विजिबल टू यू? राइट. सो इसमें क्या करना होता है? बहुत आसान है, बहुत ही इसका नाम भी बड़ा आसान है, सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर. इसमें क्या करना होगा? विल लगा देना है. I will, you will, he will, she will, it will, you will, we will और अंत में they will. will लगा दिया और साथ में पूरी क्रिया को as it is रख दिया. I will sing, मैं गाऊंगा. He will speak, वो बोलेगा. She will dance, वो डांस करेगी. Then you will understand, तुम समझोगे. We will eat, हम खाएंगे. They will go, वो जाएंगे. क्लियर है सभी को? will लगाने से काम हो जाएगा. Yes? तो ये will होता है. ओके, और विल के बाद नेगेटिव होगा. अरबाज, आपको म्यूट करना पड़ेगा. थैंक यू. या there's a lot of background score from your end. ओके, सो नेगेटिव जब होगा ध्यान रखिएगा, विल के बाद नॉट लगा दीजिए. आई विल नॉट. यू विल नॉट. ही विल नॉट. शी विल नॉट. इट विल, बोलिए. It will not. We will. We will not. They. Very good. They will. Perfect. और उसके बाद अपना वर्ब लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा. और इस तरीके से आप अगर प्रश्न पूछेंगे, तुम खाओगे क्या? Will you eat? Very good. तो आपको पहले स्थान पे क्या करना है सभी? आपको विल लगाना है पहले स्थान पे और फिर आपको उस व्यक्ति का नाम विल यू और जो भी वो करने वाले. विल यू डांस? विल यू ईट? विल यू हेल्प मी? इस तरीके से, राइट? तो यहीं पे हम रुकेंगे. तो मैंने आपको विल का थोड़ा सा आइडिया दिया है. आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं थोड़ा सा स्क्रीन पे. ये हमारा हो गया क्वेश्चन पूछना विल के अंदर. ये हो गया हमारा विल के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना और ये हमारे विल के पॉजिटिव सेंटेंसेस. और विल इस प्रकार से इसको समझ में हम काम में ले सकते हैं. Okay, there is some question from someone. Is it all clear? Is that all okay for today? Did you understand things? Okay. Yeah. Deepti, you want to say something? सर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी एक बार बताएंगे सर? Standard form as in? एज इन जैसे ये सिंपल फ्यूचर टेंस में हाँ. मतलब वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस Will as it is. बस अब विल को अपनाना है और विल में भी कोई परिवर्तन नहीं है. देखिए कितनी अच्छी बात है दीदी. आई विल, यू विल, ही विल, शी विल, वी विल, यू विल, दे विल. उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है. फिर पूरी क्रिया ईट, सिंग, जो भी है. ठीक है? चलिए होमवर्क सुन लीजिए अब बहुत अच्छे से. होमवर्क में आपको मैंने आपको सिखाया था एक टेंस कल की क्लास में. उसका नाम था सिंपल पास्ट टेंस. याद है आप सभी को सिंपल पास्ट टेंस? आई एट, शी सेड, we drank, they did, he made, we laughed, they worked. उसमें have और has नहीं लगता. याद है आप सभी को? तो आप सभी का होमवर्क है 10 वाक्य आपको बनाने हैं कल पॉजिटिव और नेगेटिव में सिंपल पास्ट पे और 10 वाक्य आपको 10 सेंटेंस आपको बनाने हैं सिंपल फ्यूचर पे. विल के साथ पॉजिटिव और विल के साथ नेगेटिव. इज दैट ओके? जी सर. ऑलराइट, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा. अरबाज, यू कैन बी ऑन म्यूट. आपकी तरफ से मेरी आवाज एको हो रही है बहुत ज्यादा, सो आप इंश्योर कीजिएगा कि आप थोड़ा सा टेक्निकल इसका सेटअप देख लें. तो ग्रुप में आप अपने होमवर्क को शेयर जरूर कीजिएगा बिना घबराए और बिल्कुल कोई इस पे फीडबैक देता है तो उसको पॉजिटिवली लीजिएगा और अपनी आवाज अगर रिकॉर्ड करके भेज सकें तो ग्रेट. आई विल बी वेरी हैप्पी. चलिए, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन. I really like the fact that you all participated a lot, and this is how it should move ahead, because the more you speak, the better you become, and you work on your pronunciation skills, you work on your fluency as well.
I wish you all a great evening and see you tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Nice evening. Yeah, you too have a great evening. Thank you. Thank you, sir. Thank you.